داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دوبارہ ملاقات۔ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت۔ قیام امن کے طریقہ کار، جنگ کے خاتمے کے لیے تازہ ترین تجاویز کا جائزہ۔ امریکہ ایران باقی ماندہ اختلافی نکات کے حل کے لیے بھی تبادلہ خیال۔ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات۔ خطے کی صورتحال، مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بدستور قائم ہے۔ پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریق معاہدے کے لیے باضابطہ فریم ورک تیار کرنے کے لیے پیغامات اور مجوزہ مسودات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایک ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے مذاکرات کار بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران کے 2 اہم دورے کیے ہیں۔ محسن نقوی نے ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ نائب وزیر اعظم کے حوالے سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران کے 2 اہم دورے کیے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ترجمان کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا وزیر اعظم اور امیر قطر کے درمیان فون پر رابطہ ہوا۔ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم 23 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی لازوال قربانیاں دنیا کے سامنے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران کے 2 اہم دورے کیے۔ محسن نقوی نے ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ محسن نقوی کی جانب سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ Iran's effort for peace, dialogue and lasting solution to the ongoing standoff in the Middle East and the Gulf region continued this week. In the Middle East, and Pakistan's led peace and de-escalation efforts. The two sides reaffirmed their shared commitment to dialogue and diplomacy as the only viable path to lasting peace and stability. There were 2 drone attacks, one on Saudi Arabia and the other on the United Arab Emirates. Pakistan condemned both the attacks and expressed full solidarity with the 2 brotherly countries and their people. With respect to the UAE attacks, let me underscore that any deliberate targeting of nuclear facilities constitute a grave violation of international law, including the international humanitarian law, the United Nations Charter, the principles and decisions of the International Atomic Energy Agency. Nuclear installations must never be targeted under any circumstances, and we hope that this tragic and grave incident will not recur. The visit of the Honorable Prime Minister assumes special significance as Pakistan and China commemorate the 75th anniversary of establishment of diplomatic relations. The 2 bilateral relations, cooperation in political, economic and strategic domains, with particular focus on the high quality development, trade, investment, industrial cooperation, agriculture modernization, information technology, science and technology and people-to-people exchanges. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے کاروباری وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی نے کی۔ وزیر اعظم کی گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق سہولت اور معاونت فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاحت، ہوٹلنگ اور ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے کاروباری وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی نے کی۔ وزیر اعظم کی گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق سہولت اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاحت، ہوٹلنگ اور ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔
आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, जिसे कोई अबूर नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम हासिल करके इसे तबाह कर देंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है पाकिस्तानी वफ़द ईरान जा रहा है, देखते हैं मुआहिदा होता है या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। आबना हुर्मुज़ में ईरानी टोल टैक्स नाकाबिले कबूल है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह कर देंगे। We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it. You will have a nuclear war in the Middle East, and that war will come here. That war will go to Europe. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने स्वीडन रवानगी से पहले कहा, देखते हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा होता है या नहीं। इत्तेहादी मुत्तफ़िक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured. So the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. अमरीकी सदर ट्रंप ने इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ईरान को धमकी दी थी, अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उस पर दोबारा हमला करेंगे। मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज़ हैं, यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बात नहीं हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं, लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाक़ी का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान ने कहा, बाज़ मामलात पर फासले कम हुए हैं, ताहम एतमाद की फ़ज़ा अब भी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। इख्तलाफात मज़ीद कम करने के लिए जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज़ हैं, ये कहा गया ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से। कौमी सलामती को महफूज बनाने में ईरानी अफवाज का अहम किरदार है। हुकूमत अफवाज की शाना बशाना खड़ी है, दिफाई सलाहियतें बढ़ाने के मंसूबों की हिमायत करेगी। ईरानी सदर से फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी की मुलाकात, सदर पेज़ेश्कियान की जवाहरियत का भरपूर मुकाबला करने पर मुसल्लह अफवाज की सत्ताइश। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानी अफवाज हाई अलर्ट पर हैं, किसी भी जवाहरियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के पास ऐसे जदीद हथियार हैं जो अभी जंग में इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उनकी जांच तक नहीं की गई। इस बार किसी तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटिला के कारकुन इंतहाई ख़राब हालत में इस्तांबुल पहुंच गए। तशद्दुद के बायस जिस्म पर नील पड़ गए, कई अफराद चलने के काबिल नहीं रहे। रज़ाकार के मुताबिक 20 अफराद में पसलियाँ टूटने और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामत देखी। कुछ अराकीन को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। वकला ने बताया कि समंदर में गिरफ्तारी के वक्त टीजर गन्स और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद ख़वातीन कारकुनान के ज़बरदस्ती हिजाब उतारे गए। सादीदी समेत आइलैंड की सदर की बहन भी ज़ेरे हिरासत थीं। स्मूथ फ्लोटिला के कारकुन इंतहाई ख़राब हालत में इस्तांबुल पहुंच गए। आम खबर मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की कराची की अदालत में पेशी। पुलिस ने मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचा दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तोसी इस्तदा किए जाने का इम्कान है। वकला सफाई की जानिब से मुलजिमा को जुडिशल तहवील में जेल भेजने की इस्तदा की जाएगी। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 16 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। आपको बता रहे हैं कि पुलिस की जानिब से मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा किए जाने का इम्कान है। कराची में मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस का 3 मुकदमात में मुलजिमा और उसके 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। पुलिस ने मुलजिमों से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाज़त भी तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी और राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमात 2021 में दर्ज हुए थे। मुकदमात में अबाद समेत 3 राइडर जेल में और 3 मफरूर हैं। अपडेट करें आपको, कराची में मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस का 3 मुकदमात में मुलजिमा और उसके 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। पुलिस ने मुलजिमों से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाज़त भी तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी और राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमात 2021 में दर्ज हुए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। जुनूबी इलाकों में शदीद गर्मी रहने की तवक्को। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अलग बूंदाबांदी, गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का डेरा, बालाई इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाओं और बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद है।
रावलपिंडी, मरी, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, खुशाब, मियांवाली समेत कई अजला में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पिशावर, चित्राल, दीर, सवात, तैबताबाद, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, मर्दान, हरिपुर, बन्नू, डीआई खान और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म है, जबकि सूबे के शुमाली अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। कराची में मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 से 31 मई के दौरान मुल्क में दरमियानी से शदीद हीट वेव की तवक्को है, जिससे सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, थरपारकर, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध पारा 47 से 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। मोमिन इकबाल केस को लाहौर ऑफिस डील कर रहा है। दोनों जानिब से बयानात रिकॉर्ड होंगे। 1-2 दिन में केस को मुकम्मल कर लेंगे। डीजी NCCIA खुर्रम अली का कहना है खवातीन के केसेस NCCIA की अवली तरजीह हैं। अगर कोई रियासत के खिलाफ बात करेगा तो कार्रवाई होगी। अगर NCCIA रियासत पाकिस्तान पर एतमाद ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना करे तो क्या करे। NCCIA में 480 एहलकार हैं, अभी अंदरूनी इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। मोमिना इकबाल केस को लाहौर ऑफिस डील कर रहा है। मुल्तान में बादशाह और लाडला की सुपरहिट जोड़ी मवेशी मंडी में हर किसी की तवज्जो खींच ली। दोनों बैल ताकत में भी बेमिसाल, पैसे भी कमाल। लाहौर सकिया मंडी में सोनू और बबलू के चर्चे। लाहौर में कसाईयों के रेट गुज़िश्ता साल से कहीं ज्यादा, बकरे का 10 से 12,000 रुपए मांगने लगे। ईद कुर्बान का जो वक्त करीब आने लगा है, मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान मुकाबला सख्त हो गया। जानवर गुज़िश्ता बरस की निस्बत 30 से 40% महंगे मिल रहे हैं। मजीद बता रहे हैं लाहौर से अफजाल तालिब। ईद उल अजहा करीब आने पर लाहौर में लगाई जाने वाली मवेशी मंडियों में सख्त मुकाबला शुरू हो गया। व्यापारी और खरीदार अपने अपने टारगेट के लिए कोशा हैं। मंडियों में जानवरों की कीमतें गुज़श्ता बरस की निस्बत 30 से 40% जायद मांगी जा रही हैं, जिससे खरीदार परेशान हैं कि सुन्नत इब्राहिमी कैसे अदा करें। अपना मुंह मांग के कीमत मांग रहे हैं, वो रियायत नहीं कर रहे। मंडी की सूरत हाल ये है कि अभी हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया आए हुए, विजिट किया, लेकिन अभी तक बात तो किसी से नहीं बनी क्योंकि रेट इनके बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है डीजल और पेट्रोल समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से जानवर महंगे बेचना हमारी मजबूरी है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी, सहूलतकारी और तवानाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कारोबारी बरादरी ने सनतों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की। अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबारी बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। मुआशी इस्तेहकाम और स्टेक होल्डर्स के साथ मौसर राब्तों के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर LCCI फ़हीमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल में ज़िम्मेदाराना और मौसर सिफारतकारी का मुज़ाहरा किया। बिजली सारिफीन के लिए हुकूमती सब्सिडी स्कीम की आड़ में हैकर सरगर्म हो गए। बिजली बिल पर QR कोड की आड़ में सारिफीन की मालूमात चोरी होने का खदशा। तर्जमान पावर डिवीजन ने सारिफीन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक सारिफीन को एक खास लिंक पर क्लिक करके 4 मराहिल में मालूमात शेयर करने का कहा जाता है। सारिफीन को मालूमात दर्ज करने के बाद उसी लिंक पर 6 हिस्सों वाला कोड दर्ज करने का कहा जाता है। बास अनासिर QR कोड को इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बिल के अलावा मुतल्लिका मालूमात किसी और प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं हो सकती। मालूमात के इंदराज का ये तरीक़ाकार गलत और गैर कानूनी है। जराइम पेशा अनासिर के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह कर दिया गया। बिजली सारिफीन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल या कागज़ पर मालूमात दर्ज ना करें।